meantime get you, even when it comes to the protest over this, what the people on ground have been calling it as an illegal construction, that at least 4 stories of this mosque that has been built. Let's in the meantime get in a word from Amandeep, who's joining us live right now. Amandeep, protests continue even till today. Well, absolutely, Amita. Yesterday it was in Sanjoli, and today the people have gathered here in Kasumti. Again, the same issue, and the same issue has been flagged by them. There is a masjid here, and the locals are raising the issue that this is illegally, the structure of the masjid was illegally raised here. And even see, these are the local, Amita, these are the local people of Kasumti area in Shimla, and they are objecting the construction of the masjid, that the upper floors has been raised. And now I request my camera person to kindly show you the structure behind the mosque, the masjid. The structure has been completely covered with the cloth, just because they have held a protest yesterday. Also, they have raised their concern that the people from outside the state are coming here, creating the trouble, and that is the reason they have gathered here and continuously raising the voice against them. So they have the documents, Amita. They are also having the documents in their hands, claiming that this land is basically belongs to center government and now illegally occupied by the Waqf board, and the structure which was raised on this land is also illegal. So we will try to speak to them. मैम, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कुसुम ठाकुर है और मैं पंथाघाटी वार्ड से काउंसलर हूँ। तो मैम, ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रही हैं, तो ये इसी मस्जिद का है? हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट यहीं का है। ये ज़मीन 99 साल की लीज पे दी गई थी, जो अब लीज जिसकी ख़त्म हो गई है। और ये जो अवैध ढांचा यहाँ पे तैयार किया गया है, ये पता ही नहीं है किन लोगों के माध्यम से किया गया है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो कौन लोग हैं, कहाँ से आप कह रहे हैं अवैध ढांचा है? कैसे अवैध ढांचा है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है कह रहे हैं कि आप 99 साल की लीज पे दिया गया था, तो अवैध कैसे हुआ फिर? तो लीज पे किसी को दिया गया था, तो वो लीज खत्म हो गई है और उसके बाद तो गवर्नमेंट के पास ही ये लैंड आ जाती है वापस, और एमसी की इसमें कोई भी परमिशन नहीं है इस ढांचे को तैयार करने की। तो इससे पहले कभी आप लोगों ने इसके बारे में कंप्लेंट करी किसके एमसी के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? 2013-14 में भी कंप्लेंट की थी और प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे। उस टाइम भी यहाँ पे अपने डीसी साहब थे दिनेश मल्होत्रा, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको बंद करा देंगे, पर वो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चुप बैठ गए, फिर हमने कुछ नहीं बोला। अब जब दोबारा इशू उठाए तो दोबारा हमने इसको इशू को उजागर किया है कि इस चीज़ को भी बंद किया जाए, और अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ा जाए, सीधी सी बात है। और हमारा किसी समुदाय से कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, पर यहाँ जो लोग आते हैं उनका पता ही नहीं है कौन है, और हमारी माँ बहनें खड़ी होती है, वो टॉन्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। यहाँ कई बार झगड़ा हो गए हैं, तो ये झगड़ा ना हो तो हम तो हमारे तो सरकार से ये अपील है कि इसको तोड़ा जाए, ये अवैध है तो इसको तोड़ा जाए, या पता किया जाए किसकी है। कितने साल से है ये मसला? सर, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे हमारे सर ने बोला, हमारे काउंसलर मैडम ने बोला, मैं इसमें एक ही चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम लोग गलती से किसी को किराए पे भी दे देते हैं कमरा, तो वो एक व्यक्ति आता है कमरा लेने कि जी हम रहेंगे, और अगर हम 1 महीने के बाद देखते हैं तो वो बेड वगैरह भी रूम से हट जाते हैं, उसमें बिस्तरा बिछा के 20-25 लोग रहते हैं। अगर पूछ लो भैया आप कहाँ से हो, तो भैया वो पानी नहीं भरने देते हैं, जूता मारते हैं। So in fact, Amita, the similar occupation that has been talked about by the residents there, because there are many of them who are locals and have been demanding and calling this as far as illegal construction of a masjid that has been made. The protest has been taking place yesterday, it continues even to today, and even when it comes to the imam of the masjid has made a big admission. Speaking to Times Now, he says, and he has acknowledged that there are certain loopholes when it comes to the construction of this masjid. प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, मस्जिद ही वक्फ बोर्ड की है, ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, तो वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है जी। लेकिन क्या ये जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण हुआ है, तो आपके हिसाब से ये ठीक है, कुछ ना कुछ अवैध निर्माण हुआ है ऊपर के फ्लोर्स पे? हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है, मगर इस मामले को एमसी में चला हुआ है, इतने सालों से चला हुआ है, इस पे कोई वो नहीं हुआ, मसलन क्या कमी रही है, ये वक्फ बोर्ड अच्छे से समझते हैं।